Good evening, friends. Welcome back to our live interaction session number 32. So, in this session, Nalini Madam is going to host. So, I just came to introduce, tell something about Sir. I think Sir was there in KV Karanja in 90s when I was studying in from 6th to 12th. I was there in Karanja. So, Sir was there as a principal. So we are very glad the sir has accepted our request to join us in the session. So now I'm going to welcome Nalini Kalodia madam to host him. Madam, please. Hello, madam. Good evening. Good evening, Padma, and Thank you good very evening to much, the ma'am. viewer. My pleasure. Yes, Good ma'am. evening, ladies and So, gentlemen, boys and girls. I am your host, Nalini Kanodia, reporting straight from KV Karanja Studios for the 32nd live session. yes. And in the series, today we have a very eminent person with us. He is none other than a brilliant principal. He has been a brilliant principal, a very inspiring teacher, a poet, a ghazal singer, a philosopher, guide, name one, a multifaceted personality with us. And I'm really honored and I thank the core group to give me this golden opportunity to host him. It's my proud privilege to introduce to you Shri Mandalji, one of the most eminent principals which KB Karanja has seen. KB Karanja boasts of a long list of multi-talented principals, and he is one among them. I'm sure we are all in for a very good session. It's my proud privilege to introduce you to Shri Mandalji. He'll share his memories, his experience with us, and I'm sure the youngsters will benefit a lot from what he has to say. Welcome, sir. Good evening, sir. Good evening, Mrs. Kanodia. Good evening, sir. Good Uh, evening. I Am consider I myself to be really, yes, audible? sir, yes, sir. I can't, yes, sir, you're audible, perfectly fine. I've heard a lot about you, sir, because I have spent most of my tenure in Mumbai region, in and around Mumbai schools, and आपके बारे में बहुत सुना है, and I consider myself to be very fortunate to be sharing the same stage with you, and I'm very lucky to be hosting you. And आज आमने सामने बैठने का मुझे मौका मिला आपके साथ में, सो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ आज, and I'm sure the session is going to be wonderful. Before we start, sir, a small tribute to Mrs. Mandal, who is no longer with us, but her memories are always with us, and wherever she is, she'll rest in peace. The core group has prepared a small tribute for Mrs. Mandal. Sujit, can we have the video, please? शत शत नमन उनको, वो जहां भी रहे सुखी रहे. Sir, Thank you. good Thank you evening, so sir. much. Yeah, Good good evening, evening. sir. Yeah, Good evening. बस हमने हम सब आपको एज अ प्रिंसिपल के रूप में जानते हैं. अब हम जानना चाहते हैं कि हमारे नन्हे से मंडल जी कैसे थे जब वो छोटे थे. We want to know a little bit about your childhood. Thank you, all of you, all the viewers who are watching this program, my teachers, my students, and I'm thankful to the core group and Mrs. Nalini for inviting me for this program. I'll be very glad to share my own experiences in Karanja and about my own
childhood and education. So, should we start now? Yes, sir. Should I start? Yes, sir. Yes, sir. We want to know Okay. about your childhood, sir. Yes, yes. Actually, मेरा जो चाइल्डहुड है और चाइल्डहुड एजुकेशन वो बहुत उथल पुथल सिचुएशन में बीता। Oh. अभी जब याद करता हूँ Mhm. तो कभी कभी शिहरण उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने अपने माता पिता से सुना, मेरे जन्म के कोई 1.5-2 महीना के बाद भारत स्वतंत्र हुआ और भारत स्वतंत्र जो हुआ तो क्यों यानी इंडिया का यानी भारत का पार्टीशन हो गया और दुर्भाग्यवश हम जहां रहते थे वो भाग पूर्व पाकिस्तान में आ गया जो आज यानी बांग्लादेश है। Oh, चारों it must have been तरफ really tough, sir. हाँ, Mhm. चारों तरफ Yes, sir. दहशत फैली हुई थी। गांव के गांव उठकर चले आ रहे थे मैंने इसके भारत। Mhm. हमारे माता पिता भी उसी में एक थे जो आने वाले थे। लेकिन हुआ यूं, Mhm. जो लोग हमारे गांव से इस भारत के लिए रवाना हुए थे वो माने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खुलना से लौट गए और जाके बताया कि अभी जाना संभव नहीं है क्योंकि खुलना से आगे और बॉर्डर तक इतना मारपीट और खून खराबा हो रहा है कि वहां से निकलना मुश्किल है। लूटमार हो रहे हैं, बस जो बस से जा रहे हैं बस रोक के वो लूटमार कर रहे हैं, ट्रेन में चढ़ के उसको लूटमार कर रहे हैं। इसके दयनीय दशा थी। तो ये बात सुन के मेरे माता पिता और जो पड़ोसी थे वो डर गए और थोड़ी देर के रुक गए, बोले थोड़ा शांत होने दीजिए। उसके बाद महात्मा गांधी गए नोआखाली के दंगा को शांत करने के लिए। तो वो नोआखाली के दंगा तो वहां ऊपर से तो दिखाई दे रहा था शांत है, लेकिन अंदर ही चल रहा था और हमारे एरिया में भी अंदर ही चल रहा था। उस समय कोई टेलीफोन रेडियो या मैंने इसके टेलीविजन कुछ भी नहीं था। तो जो कुछ खबर मिलती थी लोगों से मिलती थी। तो जो लोग उधर से शहर से आते थे वो बताते थे कि ऐसी हाल है, इसलिए आप अभी यहाँ से घर से मत निकलो क्योंकि कंपैरेटिवली यानी आपका एरिया थोड़ा सा इसके अलग पड़ता है। यहाँ लोग आएंगे तो नाव से आएंगे, जमीन से तो डायरेक्टली आ नहीं सकते, सब नदियों से घिरा हुआ जगह है। इसलिए आप ये वॉचफुल रहिए कि यहाँ से नाव से कोई ना आए और आपको नुकसान ना करे। तो लोग जो एक्चुअली मैंने माता पिता से सुना, जो जेंट थे वो रात को आंगन में एक कुछ सोते थे, कुछ जगते थे, सिर्फ महिलाएं सब अंदर घर के अंदर सोती थी। हाँ, इतना दहशत था। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा टाइम बीतता गया लेकिन खबर शांत होने का खबर नहीं आ रही थी और इसमें 3-4 साल बीत गए और हमारी जो पढ़ाई नहीं हो पाई कुछ भी। तो हमारे पिताजी ने क्या किया, गांव के जो शिक्षक थे जो पहले पढ़ाते थे उनको प्राइवेटली हमको कहा कि इनको थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। तो वो क्या पढ़ाते, उनको भी डर था कि क्या हो जाए, कुछ हो जाए तो समझ में नहीं आता है, तो वो भी ध्यान नहीं दे पाते और हम तो बच्चे थे, हमको समझ में आता नहीं था। हाँ, एनीवे इसमें 5 साल बीत गए और उसके बाद पिताजी को ये खबर मिली कि एक दोस्त से कि अभी थोड़ा शांत है और गवर्नमेंट ऑफ इसके पाकिस्तान ने एक ऑफिस को दिया है, माइग्रेशन ऑफिस।
अगर आप माइग्रेशन करके जाओगे तो फिर क्या है कि आपको सेफली। खुलना से लेके बॉर्डर तक एरिया आपको पुलिस प्रोटेक्शन में वो अच्छा। पहुंचा देगा। हाँ, ओके। ओके। तो मेरे पिताजी फिर गए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहां जाके माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना के लेके आए। उसके बाद ओके। 1 हफ्ते के बाद हम लोग चले आए। पहले खुलना आए, नाव से आए, ओके। और उसमें नाव से आके खुलना, और खुलना से फिर मैंने इसके बेनापोल आए बॉर्डर, और वहां पर चेकिंग के बाद हमको दूसरी गाड़ी में लेके हमको शियालदा में वेक्टर में छोड़ दिया। ओके। जहां तक हमको याद है, जैसे माता पिता ने बताया, करीब 1 हफ्ता हमको प्लेटफॉर्म में ही रहना पड़ा। हाँ, खाने पीने का कोई कोई इंतजाम नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ, जो कुछ पैसा था थोड़ा सा वही, कभी डबल रोटी खाते थे, कभी कुछ खाते थे। इस हालत में मैंने 7 दिन बिताए। उसके बाद ओके। रजिस्ट्रेशन ऑफिस से सर्टिफिकेट मिला शियालदह से। तो फिर हम्म। हमको वहां से ट्रक में बैठा के हावड़ा हावड़ा में लेके आए, और ओके। हावड़ा में लेके आए। और रात के एक ट्रेन में, हमको पता नहीं है, एक रात के ट्रेन में बैठा के एक बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के एक जंक्शन था, खाना जंक्शन, वहां खाना जंक्शन में छोड़ दिया। हम रात भर वहीं बैठे रहे। और सुबह एक ट्रक फिर आई, और वहां से लेके एक ऐसी जगह पे लाके छोड़ा जहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक बड़ा तालाब था वहां पर। तालाब के किनारे हमको वहां डाल दिया। करीब हम लोग उसमें करीब इसके 30-40 फैमिली थे, और सबको वहीं डाल दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने उसी ट्रक में भर के, यानी जो टेंट होता है, वो टेंट और उसके जो सामान गाड़ने का जो होता है, वो सामान ला के दे दिया, और सबको एक एक टेंट दे दिया कि आप यहाँ टेंट लगाओ और यहीं रहो। हाँ, ओके। तो वहाँ तो कुछ आप भी लोग नहीं कितने यार। हाँ, तो आप लोग कितने दिन तो रहे वहां पे टेंट में? हमें तो सुनिए, तो टेंट में जब रहे वहां पर, हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने आ, बोला कि ये सब काम तो हम लोग टेंट कैसे गाड़ते हैं ये नहीं है। तो उन्होंने कुछ मजदूर वगैरह बुलाया, और बुला के वो टेंट गाड़ के हमको दिखाया, और हमें उसे फिर ये किया। और वहां हम जब आए तो करीब यानी वही 30-40 फैमिली थी, लेकिन हमारे बाद प्राय 200 फैमिली और वो वहां ला के रख दिया। हाँ, फैमिली रख दिया। अब जब वो 200 फैमिली जब आए, तो उन्होंने सबने ये डिमांड किया, साहब यहाँ पर हमारे यानी खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, कुछ यानी आसपास कोई बाजार हाट नहीं है। हमें कुछ ऐसा करने के इसे यहाँ अरेंजमेंट किया जाए ताकि हम कुछ परचेस कर सके, खा सके, और हमारे बच्चों का कुछ एजुकेशन के लिए कुछ यानी इंतजाम किया जाए। तो सरकार ने फिर वहां वो टेंट बना के एक स्कूल नुमा टेंट बैरक्स बना दिया, और वहां पर बच्चों को भेज दिया। मैं भी उसी में चला गया, और वहां पर वहीं से मेरा एजुकेशन का श्रीगणेश हुआ। और मुझे देख के उस टाइम मेरे ख्याल से मेरी उम्र 7 साल या 6 साल या ऐसा कुछ होगा। तो देख के उन्होंने कहा कि इसको सेकंड क्लास में भर्ती करा दो, और दूसरे को जो छोटे थे हमसे, वो ये क्लासेस पर मेरे से बड़े जो थे, वो 3rd क्लास पढ़ते, ऐसे ही अंदाजे उन्होंने कर दिया। उसके बाद वहीं पर हम 5 साल रहे, और 5 साल में हम वहां से 5वीं क्लास पास कर दिए। मस्ट हैव बीन हाँ, रियली बहुत और टफ उसी रहा हाल होगा सर अर्ली चाइल्डहुड आपका। हाँ, हाँ, तो 5 साल मैंने में कहा बहुत हम टफ वहां था से आपका अर्ली चाइल्डहुड। हाँ। बहुत वहां पर, तो ये से 5 साल में तो राइट। चौथी पास करके 5वीं में पहुंचे। और अचानक फिर एक दिन रात को उनको कहने एक ट्रक आया, और बोलेगा आपको यहाँ से उठ के जाना है, और सबको वहां से उठा दिया, और ट्रक में बैठा के सब कहने लेके गए। फिर वही यानी खाना जंक्शन, और वहां से एक ट्रेन में बैठा दिया, और बैठा के फिर हमको लेके आए रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो मध्य प्रदेश में है, और आज जो छत्तीसगढ़ में है। रायगढ़, बिलासपुर के पास रायगढ़। ओके। रायगढ़, तो उस
रायगढ़ से वहां उतार दिया, फिर वहां से ट्रक में बैठा के लेके गए वो कने एक इंटीरियर एरिया धर्मजयगढ़। धर्मजयगढ़ के पास एक छोटा सा माने गांव था, उसी के पास जंगल था बिल्कुल। वो जंगल के पास लाके उतार दिया, बोले यहीं आपको रहना है। अच्छा। हम लोग चकराए कि क्या है यहाँ पर, तो फिर उन्होंने वही किया कि वही किया। इसके पास कुछ व्यूअर्स के मैसेजेस आ Yes, रहे हैं। sir. Yes, Pardon? ma'am. Yeah. So, Yeah. Lalini madam. So, Lily हाँ, madam has joined us. Barai sir, Pal sir, Oza Yeah. sir, all these teachers have already joined us. Sir, all of them Good are evening, namaste everyone. बोल रहे हैं sir आपको. And हाँ? many students like नमस्ते yeah, सबको Sachin, नमस्ते। Sujit, yeah, नमस्कार, Ranjit Kam. नमस्कार सभी शिक्षकों का सबको नमस्ते नमस्कार। हमारा। Yes, sir. They already joined us, and everybody are saying namaste sir, namaste madam. So many Namaste students to like everyone. Santosh Rao, Sujit, Hemlata, Sushma Kamle, Rekha Singh. She is telling Sadar Pranam sir, good to see you after so many years. सभी स्टूडेंट्स को Yeah, आशीर्वाद, yeah. टीचर्स को नमस्कार। So already we are having 23 viewers. So it's a great initiative, sir. So ma'am, continue. या श्योर। मैं सर अभी तक पार्टीशन के बारे में तो हमने तो बहुत सुना। मैं तो खैर पार्टीशन के बाद में पैदा हुई हूँ। आई एम बोर्न इन 58। अभी तक तो मैंने कई लोगों के व्याख्यान जो सुने, मोस्टली वो पंजाब से जो आए हैं, पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान से आए हैं। मैं पहली बार ईस्ट पाकिस्तान से जो आए हैं उनके बारे में उनका व्याख्यान सुन रही हूँ। उन आप बीती सुन रही हूँ सर आपसे। तो मैं ये बोल रहा था मुझे लग हाँ जी, वहां से उठा के देखिए हमें धर्मजयगढ़ में लग गया, ये कहने जंगल के पास। और उन्होंने कहा कि यहीं पर आपको अभी फिलहाल टेंट पे रहना है, बाकी हम आपको घर बनाने के लिए सरकार से पैसा आपको मिलेगी और पैसा मिलेगा और उससे आपको घर बनाना पड़ेगा। तो वहां पर भी कहने लकड़ी वगैरह तो हम लोग वही पैसे से खरीद लिए, लेकिन ये जो मिट्टी का दीवार कैसे बनाते हैं ये हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन वो फिर वहीं पर जो लोकल लोग थे उनको मजदूरी में लेके उनको बना लिया और वहीं पर रहने लगे। हाँ, और वो करीब एक घर वर बनाने में हमको 6 महीना बीत गया। तो 6 महीने बीत गए और उसमें मेरी पढ़ाई छूट गई और पढ़ाई नहीं हुई। तो उसके बाद लेकिन मेरी यानी इच्छा थी कि मैं किसी हालत में स्कूल में जाऊं और पढ़ूं। तो मैंने पिताजी से कहा कि मुझे स्कूल जाना है। तो बोले कि यहाँ से कैसे जाओगे? वहां से 3-3.5 किलोमीटर से डायमीटर में कोई स्कूल नहीं था, कोई स्कूल नहीं था। और जंगल शाम के टाइम इस जंगल से भालू वगैरह निकलता है। हाँ, और दिन में भी कभी कभी महुआ खाने के लिए, महुआ पेड़ बहुत थे वहां पर, महुआ खाने के लिए आता है। तो बोले कि ऐसी हालत में कैसे जाओगे? मैंने कहा हम चले जाएंगे। तो मेरे साथ एक और लड़का, वो भी राजी हो गया जाने के लिए। तो दोनों एक दिन हम घर में बिना बताए हम स्कूल भी गए। वो 3.5 किलोमीटर जो हम पैदल चले गए और जाके हेडमास्टर साहब से बोला कि सर हम लोग हमको उस वहां पर रिफ्यूजी बोलते थे, हमको सब रिफ्यूजी बोलते थे। हाँ, तो आपने कहा कि हम तो रिफ्यूजी हैं, हमने वही वर्ड यूज किया, हम तो रिफ्यूजी हैं। हाँ, लेकिन हम बांग्ला में बोलते थे और वो हिंदी बोलते थे ना। तो वो हमारी भाषा समझते थे ना मैं उनकी। ये प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मेरे साथ जो लड़का था वो थोड़ा छत्तीसगढ़ी सीख लिया था पहले से। अच्छा। वो क्या है, उसने छत्तीसगढ़ में बताया कि हम लोग रिफ्यूजी हैं। तो समझ गया कि ये रिफ्यूजी कॉलोनी के बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? तो हमने कहा एडमिशन। फिर उससे वो बात करने लगा, मैं तो चुप रहा, मेरी बात समझ नहीं रहा। मैं बांग्ला, हिंदी, छत्तीसगढ़ी कुछ भी नहीं जानता था। तो उसने बताया कि भाई ऐसा है कि यार हम लोग ऐसे भर्ती होना चाहते हैं। तो बोले तुम्हें हिंदी तो आती नहीं, क्या पढ़ोगे यहाँ पर? कुछ पढ़ नहीं पाओगे। हाँ, पहले हिंदी पर सीख के आ जाओ। हाँ, तो बोले साहब नहीं, हम यहीं सीख लेंगे, आप यहाँ पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? बोले नहीं तो क्लास 1 या 2 में तुमको एडमिशन कर सकता हूँ।
तो अच्छा। मैंने मना कर दिया, मैं तो 1 में तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने 5th में पढ़ के आया हूँ, 1 में तो मैं नहीं आऊंगा। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ। मेरा 3-4 साल बर्बाद हो जाएगा, तो मैं तो पहले यानी हिंदी सीखूंगा फिर आऊंगा। तो मैंने उससे कहा कि मैं हिंदी अगर सीख के आ रहा हूँ तो आप 5th में एडमिशन ले लेंगे? तो बोले हिंदी अच्छी तरह से बोलना सीख के आ जाओगे, लिखना सीख के आ जाओगे तो फिर ले लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम गए, तो हमने यानी क्लास 1 की किताबें खरीद ली और उसका वही यानी अच्छा। में अक्षर ज्ञान तो मुझे था ही था, और इसका अक्षर ज्ञान, इसका हाँ। अक्षर को कैसा कंस्ट्रक्शन है वो लिखना पहचानना था। तो मैंने उसको ओके। यानी अच्छी तरह से 15 दिन में उसको यानी ये कर दिया कि ये ऐसा अक्षर होता है, और लिखना सीख लिया। उसके बाद मात्रा लगाना आना, और मात्रा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमको यानी इसके बंगाली में भी मात्रा जैसे लगाते हैं वैसे ही हिंदी में मात्रा लगाते हैं। तो हमको उसके बाद अच्छा। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हम 1.5-2 महीने के ओके बाद हम अच्छी तरह से पढ़ना हमको आ गया। तो हम जाके ओके। फिर बोले, हम फिर टूटी-फूटी भाषा में उनको कहा, गुरुजी, उनको वहाँ पर गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी मुझे हिंदी आता है अभी, हाँ, मुझे हिंदी हिंदी आती नहीं है, हिंदी आता है, ऐसा ऐसा आता है। है। इनकी गलती गलती होती थी, हाँ। हाँ हाँ जी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ एक टेस्ट दे सकते हो? मैंने कहा ले लूंगा, ले लीजिए। तो हाँ। उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हमको लिखने के, उसको और हम दोनों को, तो उस वर्ड्स का हमने हिंदी में लिख के यानी बता दिया। फिर कहा कि अपने बारे में 5 सेंटेंस लिखो हिंदी में, हाँ। ओके। तो हमने अपने बारे में लिख दिया, मेरा नाम क्या है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ, वो सब लिख के दे दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन फिर उसने गुरु ने कहा कि देखो, अब 5वीं क्लास में तुम एडमिशन मांग रहे हो, अब 3 महीना, वो जनवरी का महीना था, अब उस समय 5वीं क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन होता था, हाँ। तो उन्हें 3 महीना रह गया है बोर्ड एग्जामिनेशन का, क्या तुम पूरा कर पाओगे कोर्स और कह रहे पास हो पाओगे, हमारा रिजल्ट तो नहीं बिगाड़ोगे? तो मैंने तो कहा कि मैं आपका रिजल्ट नहीं बिगाड़ूंगा, मैं पास हो जाऊंगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस देख के दूसरा एक टीचर तब बोले कि अच्छा सर लीजिए, यानी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। तो मैंने फिर वो हम दोनों ने एक्चुअली स्कूल में तो एडमिशन लिया, ओके। लेकिन हमारी पढ़ाई एक्चुअली बाहर, स्कूल के बाहर होती थी। हम दोनों पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, हाँ, पेड़ के नीचे, हाँ हाँ। आप बड़े बड़े पेड़ थे, पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, और मैं हिंदी में पूछता, और उसका बंगाली में वो पूछता, वो हिंदी में जवाब देता, और वो पूछता, मैं जवाब देता। इस प्रकार से अच्छा। हिंदी में मैंने फ्लुएंसी लेके आए। ठीक है। और उसके बाद मैथ्स में मैं तगड़ा था, मैथ्स में मैं तगड़ा था। ओके। तो मैं मैथ्स हाँ में जी। उसको सिखा दिया। सोशल स्टडी 3 सब्जेक्ट होते ओके। थे, सोशल हाँ स्टडी। हाँ। सोशल स्टडी में ओके। उसमें क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री था, थोड़ा ज्योग्राफी था, थोड़ा सा एक ये सिविक्स। इस प्रकार था। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे तैसे हम आने इसके मार्च में एग्जामिनेशन दे के आ गए, ओके। और देकर आने के बाद 1 हफ्ते के बाद हम गुरुजी से मिलने गए कि रिजल्ट क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे देख के कहा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा ये क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं है, बात उनकी समझ में नहीं आ रही। तो बोले ये पूरा जो सेंटर में, जिस सेंटर में करीब 170 to 180 स्टूडेंट थे, हाँ, और उस 170 स्टूडेंट्स में उस सेंटर में मेरा पोजीशन सेकंड था, मेरा पोजीशन सेकंड था, और स्कूल में फर्स्ट था। तो वेरी गुड। उन्होंने जब कहा कि तुमसे उम्मीद नहीं थी, कमेंडेबल। तो मैंने कहा गड़बड़ जरूर है। तब बोला कि नहीं, तुम बहुत अच्छा रिजल्ट किए हो, हाँ, हमें ये उम्मीद हमको नहीं थी तुम इतना अच्छा करोगे, हाँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई, हाँ। फिर उन्होंने कहा एक हफ्ते के बाद तुम आके अपना सर्टिफिकेट ले जाना, कि एडीआई का सिग्नेचर होके आ जाएगा, उसके बाद लेके जाना। मैं उस यहाँ से मेरा जो एजुकेशन थोड़ा स्मूथ होने लगा यहीं से।
तो यहाँ से मैं वो सर्टिफिकेट लेके फिर हायर, हाँ हाँ, क्या नहीं इसके हायर सेकेंडरी स्कूल धर्मजयगढ़ में, वहां पर मैं 6th अच्छा, क्लास में एडमिशन लिया। और वहां ओके, से अने मेरा वो टीचर वहां इतने अच्छे थे, मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। एक एक टीचर किसका नाम लूं वहां पर, मैंने एक एक टीचर बहुत अच्छे थे। हर सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हमने इंग्लिश सीखना क्लास 6 से शुरू किया है, एबीसीडी लिखना वो 6th क्लास से शुरू किया है। लेकिन इंग्लिश टीचर इतना अच्छे थे कि एक एक चीज ऐसे मोती जैसे दिमाग में यानी बैठ जाता था, इतना अच्छी तरह से। मैथमेटिक्स टीचर भी है। संस्कृत मैंने 6th क्लास में पढ़ना शुरू किया है, लेकिन इतना बढ़िया संस्कृत टीचर थे कि हमको संस्कृत में बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से वहां पर हर क्लास से मेरा पोजीशन आने लगा, हर क्लास में पोजीशन आने लगा। तो फिर 9th क्लास में जाके हमको मध्य प्रदेश से का मेरिट स्कॉलरशिप मिला, मेरिट स्कॉलरशिप। ओके, हाँ, commendable, commendable, absolutely commendable. तो But really, जो मेरिट I see स्कॉलरशिप, हाँ, लिली मैडम का कमेंट है कि आपने बहुत डिफिकल्टीज फेस की हैं, यू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस। आई थिंक द व्यूअर्स आर गेटिंग टू नो यू फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी तक खाली मंडल सर एज अ प्रिंसिपल जानते थे, दे आर गेटिंग टू नो यू थ्रू दिस। ये चीज तो मेरे बच्चे भी जानते, मैंने किसी को नहीं बताया ना, मेरे बच्चे भी नहीं जानते। ओके, सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू गेट टू नो अबाउट यू सर, रियली एंड कमेंडेबल। टीचर्स तो ठीक है आपको अच्छे मिले, बट आप में जो लगन थी, दैट इज व्हाई यू वर एबल टू अचीव व्हाटएवर यू वांटेड इन लाइफ सर। इट्स रियली कमेंडेबल। वंस अगेन आई थिंक आई विल क्लैप फॉर यू एंड सो आर द व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच। वो एक मोरल करेज था, और मैं उस समय समझता था कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ, जो ऊपर वाले हैं ना, वो मुझसे करा रहा है। आई हैड फेथ, exactly, आई हैड फेथ इन गॉड। yes, तो मैं yes, करेंगे, वो अच्छा ही करेंगे, जो करा रहे हैं मुझसे वो मैं कर रहा हूँ। yes, तो वो उससे वो हुआ। बिल्कुल सर। जब स्कॉलरशिप फिर मिला, आपने, हाँ जी, हाँ, स्कॉलरशिप मिला, तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया। प्रिंसिपल बहुत बढ़िया थे, यानी वो मिस्टर एस.सी. चौबे थे, वो प्रेसिडेंट अवार्डी थे, प्रेसिडेंट अवार्डी थे। स्कूल को इतना ब्यूटीफुल बना के रखा था उनने कि देखने लायक था उस जमाने में। तो उस स्कूल का स्वर्ण युग था, वो स्वर्ण युग था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मेरे नाम से बुलाया कि कालीपद देखो, तुमको ये जो इसके स्कॉलरशिप मिला है, इस पैसे से तुम क्या करोगे? और मैं सोचा मैं क्या करूंगा, ये मैंने कहा मैं लेके पिताजी को दे दूंगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ऐसा मत करो। मैं तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं सब खर्चा वर्चा पानी तो पिताजी देते हैं, तो मैं इसको अपने पास रख के क्या करूंगा? बोले हाँ, तुम्हारे पास रखना है, और उसको पोस्ट ऑफिस जाओ, और पोस्ट ऑफिस जाके अकाउंट खोलो अपने नाम से, सभी के अकाउंट, और उस पैसे को उसका जमा करो, और जितना मिलता है इसको सब जमा करो, और जब कॉलेज में जाओगे तब इस पैसे का यूज करो। उन्होंने ये एडवाइस दिया। Yes, so we have Padma again with us. So many teachers have joined us, sir. Preeti Pandey madam has joined us. Geeta Kanoja madam has joined us. Maurya sir has joined us. Yeah, sir. Oja sir is telling that शिक्षा के प्रति आपका लगाव बहुत सराहनीय है. This is the comment given by Oja sir. Oh, thank you, Oja sir. Thank you. और Maurya sir is saying, sir आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, and everybody are happy to see you on screen, sir, after a long time. And we are having Manju Sharma madam also. Manju madam also joined us. Yeah. So these are the teachers who have joined us, man. So all are very happy to see, sir. Yes, sir. सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, आदाब। मुझे तो किसी को कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जो मजा सुना रही है मैं वही सुन रहा हूँ। तो सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आपने समय निकाला और
आ, मेरी कहानी सुनने के लिए यहाँ पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस राइट। फिर सर आपने मुझे अब जैसे हायर एजुकेशन फिर कहाँ पे की आपने सर? व्हाट अबाउट योर हाँ, हायर तो यही एजुकेशन देन? वही 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 मैं बोलने जा रहा हूँ। तो 12th क्लास 11th क्लास जब पास किया तो अच्छे नंबर में पास किया, उसमें मेरा फर्स्ट क्लास था। हाँ, तो उसको देख के हमारे टीचर ने कहा कि तुम एक बोला कि देखो, यानी उसमें एक कॉलेज खुला है भोपाल में जिसका नाम है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। हाँ, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वहाँ स्पेशली टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है, और वहाँ बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है। अगर उस कोर्स को तुम कर लोगे अच्छा। तो तुमको नौकरी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, तुमको बुला बुला के नौकरी देंगे। हाँ, तो मैंने कहा कि भाई सर, माने वहां पर कैसे यानी हम एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर क्या है? तो इसमें देखिए, मैं अपना एक बेवकूफी की बात मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि उससे 2 रुपए का प्रोस्पेक्टस मंगवा लो, 2 रुपया प्रोस्पेक्टस। तो मैं ये पूछना भूल गया, 2 रुपया कैसे भेजूं? मैंने मनी ऑर्डर से भेज दिया, उनका मनी ऑर्डर भेज दिया। वहां से लिख के आता है कि मनी ऑर्डर इज नॉट एक्सेप्टेड, ओनली a postal order is accepted। अब मैंने नाम ही नहीं सुना था। हाँ, कभी इसके पहले नाम ही नहीं सुना था। तो मैं वो भाई साहब के पास गए, मैंने मेरे केमिस्ट्री लेक्चर जिन्होंने बताया था, तो वो घर पे नहीं थे, पास में इंग्लिश के लेक्चरर थे मिस्टर गौर। तो उनके पास गया, मैंने उनको लेटर दिखाया, मैंने कहा कि सर ये पोस्टल ऑर्डर क्या चीज होता है? तो बोले तुमको पता नहीं है? मैंने कहा नहीं। तो बोले एक काम करो, तुम पोस्ट ऑफिस में जाओ और उनको कहो पोस्टल ऑर्डर दे दो 2 रुपया का। और वो पोस्टल ऑर्डर 2 रुपया का है, लेकिन 2 रुपया 10 पैसा लगे, 10 पैसा सरचार्ज लेते हैं, तो 2 रुपया 10 पैसा देना और लेके, और साथ में एक एनवेलप लेके आना और मेरे पास आना। हाँ, मैं गया, पास में पोस्ट ऑफिस था, मैं लेके आया और लेके उनके पास आया, तो उन्होंने हमको बताया पोस्टल ऑर्डर कैसा भरना है, हाँ, कहाँ क्या भरना है, वो सब उन्होंने बताया, मैं लिख दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन लिखना तो उन्होंने क्लास में हमको लिखा सिखाया था अंग्रेजी में, तो मैंने वो एप्लीकेशन लिखा, एनवेलप में डाल के मैंने भेज दिया। कोई 10 दिन में प्रोस्पेक्टस आ गया, मैंने फिर उसको प्रोस्पेक्टस यानी एप्लीकेशन भर के भेज दिया। फिर 10-15 दिन गया था, मुझे याद है क्या है कि 13th ऑफ जुलाई ये रथ यात्रा था गांव के पास, यानी एक गांव में रथ यात्रा हो रहा था। मैं जा रहा था दोस्तों के साथ देखने के लिए। रास्ते में पोस्टमैन मिला, उसने कहा आपका एक लेटर है। उस समय 5 बजा था, शाम को 5 बजा था। तो उसने लेटर दिया, मैंने तुरंत खोला, देखा, तो मेरा सर चकरा गया, क्योंकि उस लेटर था एडमिशन का नहीं था, वो लेटर था इंटरव्यू का। तो आज 13th है, 5 बजे मुझे लेटर मिल रहा है, और 14 को 10 बजे मुझे वहां पहुंचना था भोपाल, और मेरे घर से भोपाल 1000 किलोमीटर दूर। हाँ, कैसे मैं पहुंच सकता था? मैं पहुंच नहीं सकता था किसी हालत में। चले का ये चांस गया मेरे हाथ से। मैं थोड़ी देर तो सुन वहीं खड़ा रहा कि मैं, ये चांस मिला था और चांस गया। लेकिन मैं, वो लोग को बोले चलो चलो चलो, मैंने कहा तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाता। मैं वहां से सीधा वो 3.5 किलोमीटर जो यानी क्या मेरा इसको स्कूल था, वहीं पर यानी गौर साहब के पास चला गया और चला वहां के जाके पूछा, उनसे पूछा कि सर आप क्या कर रहे थे, ये हालत है, कल इंटरव्यू 10 बजे और अभी मुझे लेटर मिल रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें? तो उन्होंने देखा, बोले ये सो इम्पॉसिबल काम है। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचते हैं। तो प्रिंसिपल साहब हमको अच्छी तरह से जानते थे उसे, तो वो लेके गए हमको। प्रिंसिपल साहब उस टाइम 7 बज रहा था, यानी रात के, और
ऑफिस में बैठ के वो काम कर रहे थे। हम्म, तो हम लोग दोनों गए, तो बोले क्या बात है इतना रात को तुम लोग आ रहे हो? तो उन्होंने लेटर दिया, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा, उन्होंने लेटर दिया और सब एक्सप्लेन कर दिया। तो उन्होंने भी, प्रिंसिपल साहब ने भी लेटर को अच्छी तरह से इधर से करके लिफाफा को मैंने पलट पलट कर देखा, देख के बोला, हमको बोला कालिका तुमको एक रिस्क लेना पड़ेगा। बोला क्या? मैं उन्होंने कहा कि मैं एक लेटर लिख के देता हूँ और उस लेटर को लेके वहां के प्रिंसिपल को तुमको देना पड़ेगा, लेकिन एक रिस्क है, क्योंकि उनके पास ये पूरा राइट है कि ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू यू डिडंट रीच देयर, सो दे हैव द राइट टू रिजेक्ट यू। हाँ, they have the right to reject you. So, but you have a claim here because on 13th, 5 o'clock you are receiving this letter, and for you it is impossible to reach there. So that is a genuine reason. I am giving this genuine reason, writing this letter to the principal, and he may consider, he may not consider. So you have to take a risk. हाँ, तो ये समझ के अगर नहीं हुआ तो यू गो एंड इसके सी द भोपाल एंड कम बैक। तो मैंने कहा ठीक है आप लिख दीजिए, मैं जाऊंगा। तो उन्होंने लिख के दिया और उन्होंने ये मुझे वार्निंग दिया, ये जो लिफाफा है इस लिफाफा को खोला नहीं। हाँ, ये लिफाफा तुम्हारा प्रूफ है, इसमें कुछ सील है, तो 13 को तुमको मिला है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, इट इज ट्रू, दिस इज द प्रूफ। तो उन्होंने उस लिफाफा को, लेटर को एक एनवलप में सब डाल दिया, सील कर दिया, मुझे दे दिया। So then you went finally. 8 बजे करीब वहां से निकला, वहां निकल नहीं घर पहुंचा। अब उस समय तो वहां से कुछ जाने का कोई साधन नहीं था ना, वहां से कोई साधन नहीं था। तो मैं घर गया, पिताजी को बताया ऐसा है कि मुझे कल निकलना ही है। तो पिताजी और माँ, स्पेशली माँ, तो जाने नहीं देना चाहते, नहीं तुमको अकेले जाने नहीं देंगे, करेंगे। हमने कहा माँ मैं अपनी करियर के लिए जा रहा हूँ, कुछ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तुम तो मुझे पढ़ाना चाहती थी, तो मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। जैसे जैसे उनको मनाया, और फिर 10 बजे बस आती है, मैं उस बस में बैठ के मैं चला गया मैंने रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से फिर बिलासपुर पहुंचा। और आपको पता ही है कि बिलासपुर से ही इंदौर बिलासपुर जाता है। तो उस इंदौर बिलासपुर में रात के 10 बजे बैठ के फिर 15 तारीख को सुबह में भोपाल पहुंचा। वहां से बस से मैं पहुंचा पॉलिटेक्निक बस स्टॉप। वहां से मैं 1 किलोमीटर करीब पैदल गया, और पैदल जाके फिर कॉलेज में पहुंचा। पसीना पसीना हो गया था, पहाड़ी था, यानी चलते चलते। तो थोड़ी देर थोड़ा सा जाके पानी वानी पिया, और प्रिंसिपल के रूम पे गया। नेट इशू, अच्छा। तो प्रिंसिपल अभी सुनाई नहीं दे रहा है? Yes sir, I can hear you. I can hear you sir. Can hear you. हाँ, I can hear you sir. सुनाई दे रहा है सर। I can hear you. अच्छा। तो मैं प्रिंसिपल साहब के कमरे के सामने, आप नहीं सुन पा रहे मुझे? हाँ, आई एम हियरिंग, आई कैन हियर। हाँ जी। हाँ, तो प्रिंसिपल साहब के सामने मैं अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, तो मैंने सिर्फ हिंदी ही बोला कि मैं आ सकता हूँ। तो मेरे तरफ देखने लगा कि ये यहाँ तो इंग्लिश चलती है, ये हिंदी में कैसे बोल रहा है। तो एनीवे उन्होंने कहा आ जाओ। मैं जाके प्रिंसिपल साहब का लेटर उनके हाथ में दिया। तो उन्होंने सब पढ़ के वो बहुत लर्नेड आदमी थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जैसे पीएचडी किए हुए थे, तो एनसीईआरटी प्रोफेसर थे। तो और एनसीईआरटी ने ही रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन को रिकमेंड किया था बनाने के लिए, कि ताकि टीचर एजुकेशन, स्पेशली साइंस टीचर का ट्रेनिंग दिया जा सके, वहाँ साइंस टीचर बनाया जा सके। तो उन्होंने मेरा मार्कशीट वगैरह देखा,
देखा, देख के देखो बोला, ठीक है, अच्छा तो है, लेकिन इंटरव्यू तो हो गया है। अब तुम एक काम करो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाओ, उनसे पूछो अगर वैकेंसी है, अगर उन्होंने पूरा वैकेंसी अभी फिलअप नहीं किया है तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू करा देता हूँ। मुझे कुछ रे ऑफ होप दिखाई दिया। मैं दौड़ के गया कि चल के गया मुझे पता नहीं, मैं चला गया, मैं अरे सेकंड फ्लोर में था, मैं चला गया सीढ़ी चढ़ के। हाँ, ओके। चल के हाँफते हुए वहां गया और जाके उनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट के कमरे में गया, वहां देखे 3 लोग बैठे हुए हैं। हमको अब कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें से हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैंने कि कुछ भी हो, मैं आ सकता हूँ, क्या परमिशन मांगा, अंदर गया और जाके मैंने प्रिंसिपल साहब को लेटर दिया। मैंने कहा कि जी प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं अगर वैकेंसी है तो इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा मार्कशीट दिखाओ। मैंने मार्कशीट दिखाया, मार्कशीट अच्छे थे। उन्होंने देखा तो बोले ठीक है जाओ, प्रिंसिपल साहब बोलो कि यहाँ वैकेंसी है, वी कैन कंडक्ट द इंटरव्यू। मैंने कहा आप लिख के दे दीजिए तो फिर मैं उसको दिखा दूंगा। हाँ, तो उन्होंने लिख दिया कि वैकेंसी एग्जिस्ट करके लिख दिया। मैं लाके प्रिंसिपल साहब को दिया, प्रिंसिपल साहब ने बिना देर किए इमीडिएट लिख दिया कंडक्ट इंटरव्यू। हाँ, मैं फिर दौड़ के उनके पास गया और जाके फिर लिख के उनको लेटर दिया। तो बोले कि थोड़ा शांति से पानी पियोगे, हाँ पड़ा था मैं, तो पानी पियोगे, तो बोले ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ। तो मैं बैठा, थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर कहा कि आप कुछ पूछे? मैंने कहा हाँ पूछिए। तो मैं अकेला कैंडिडेट था वहां पर, उस दिन वो लोग टोटल फ्री गप्पे कर रहे थे, तो इतने क्वेश्चन शुरू किया। एक केमिस्ट्री प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री से शुरू किया, फिर फिजिक्स में गए, फिर मैथमेटिक्स में गए, फिर इंग्लिश में गए। अरे जो भी जितने सब्जेक्ट थे ना, सब में पूछ लिए। तो मैं मेरा मेरा भी पसीना पसीना होने लगा। मैंने कहा इतनी सारी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब पता नहीं फिर सिलेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर वो एक प्रोफेसर केटी सिंह थी, हाँ, वो माने एजुकेशन के प्रोफेसर थी। तो उन्होंने जो प्रोफेसर केमिस्ट्री प्रोफेसर से बोला कि बस करो, बहुत हो गया। हाँ, तो उसने रोक दिया। उन्होंने कहा तूने क्वेश्चन का जवाब तो सही सही दिया साहब, किंतु एक प्रॉब्लम है। मैं फिर चर्चा गया, भाई क्या प्रॉब्लम है भाई इस बीच में? तो बोले कि यहाँ पर एजुकेशन सब इंग्लिश में, टीचिंग इंग्लिश में होता है और स्टूडेंट भी इंग्लिश में लिखते हैं। तुम तो सब हिंदी बोलते हो, हिंदी में कैसे करोगे? कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको, हाँ, तुम फेल हो जाओगे। तो मैंने कहा कॉन्फिडेंटली कि सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं 3 महीना में आपका इंग्लिश फ्लुएंटली बोल के दिखा दूंगा और इंग्लिश में बता दूंगा। Hello, ma'am, sir. Sachdeva madam has joined us. Yes. Sharma sir. Okay. I think you remember, sir. Yes, madam. sir. Sachdeva madam, sir. In the chat for Sachdeva. कौन? Sachdeva Sachdeva. Yes, sir. She has joined us. Good evening, everyone. Glad to see you all. नमस्कार Sir, Good evening. Sharma sir has also joined, sir. Sir is telling that मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा लिखित कविताएं बहुत ही सुंदर और उच्च स्तर के होते हैं। सर, ये शर्मा सर का कमेंट है सर। शर्मा सर, सर संस्कृत सर थे ना सर? यस सर, राधेश्याम शर्मा सर। सक्सेना सर? कौन सक्सेना सर? नो सर, शर्मा सर। राधेश्याम शर्मा सर। शर्मा सर। राधेश्याम शर्मा। यस सर। अच्छा। ओ थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। संस्कृत टीचर थे। हाँ, यस सर। हाँ सर, हमारी फ्रेंड रेखा सिंह कह रही है कि आप सर आपकी स्वरचित कविताएं सुनाएं, and she wants to she's telling regards and to madam too. We have learned a lot of life lessons through his life experience. सर, ये रेखा के कहना है सर। राकेश जोशी, जो भी जोशी मैडम का बेटा है, he also joined us.
Rakesh Joshi. Yeah, hello. Yeah, Yeah, Sunil hello. has joined us. Yes, sir. Many of them Hello have to joined us, all sir. the Yes, sir. hello and good evening to all the viewers. Good evening to everybody. Okay. Every Sunil teacher, Pujari every and also. student. Good evening. Yes, sir. And welcome. And thank you for coming and hearing me. Tolerating me. नहीं, नहीं, नहीं. So we want to know about your KV Karanja days, sir. अभी थोड़ा सा मैं वहां पर आता हूँ. एक मिनट थोड़ा सा Okay. केवी करंजा के बारे में बताऊंगा. थोड़ा सा जब आप मेरे लाइफ पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा ही जो गैप रह जाए थोड़ा सा बता दूं. तो उसके बाद फिर उन्होंने सिलेक्ट कर लिया. मुझे कहा कि आप जाके इसे एडमिशन फीस भर दो. मैं फिर एडमिशन फीस भर दिया और 4 साल तक हम वहां पर रहे और बीएससी बीएड हमने वहां से किया. बीएससी बीएड करके हमको हायर सेकेंडरी डिवीजन मिला. तो एक्चुअली क्या थोड़ा सा फर्स्ट ईयर और सेकंड में लो मार्क्स था, इसीलिए ये तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हमेशा फर्स्ट क्लास था, लेकिन वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के वजह से थोड़ा हायर सेकंड क्लास में आ गया. उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिला जगदलपुर में. वहां पर गए 6 महीने हम वहां काम किए. वहां से फिर केंद्रीय विद्यालय में मैं डायरेक्ट आमला में अपॉइंटमेंट हुआ. आमला में अपॉइंटमेंट केंद्रीय विद्यालय वहां से ट्रांसफर होके मैं जबलपुर गया और जबलपुर से वहीं से एमएससी किया. एमएससी करके जब वहां एमएससी किया तो उस टाइम राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री, पहले इसका नाम रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज. ये कॉलेज जो है देहरादून में है. ये पहले इसको राजकुमार कॉलेज कहलाते थे. पहले इसको राजकुमार मतलब इंडिया के जितने भी राजकुमार होते थे वो वहां पढ़ते थे. और रायपुर में भी है ना सर? रायपुर में भी है ना? रायपुर में एक है. तो ये जो कॉलेज था इसका 13 मार्च 1922 में 1322 में इसके प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस एडवर्ड 8 आप इसने इनॉग्रेट किया था. उनके साथ माउंटबेटन भी थे. तो ये जो वो एडवर्ड 8 है जिसने अपने इसके एक अमेरिकन डाइवर्सी लेडी के शादी करने के लिए अपना इंग्लैंड का थ्रोन को त्याग दिया था. वो थे. तो उसके बाद उनका छोटे भाई इसके किंग जॉर्ज 6 बने, जो अभी प्रेजेंट क्वीन है, इनके फादर थे. वो जो प्रेजेंट क्वीन है एलिजाबेथ सेकंड, उनके फादर थे. तो मैं आरएमसी में एज ए सीजीओ सिविलियन गजेटेड ऑफिसर के हिसाब से गया था वहां पर, और उसको डेजिग्नेशन था मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स. वहां पर सब काम करना पड़ता था. एक्चुअली एक चीज हम वहां देखा, you can be master of one subject, but you can be, if you try, can be jack of all subjects. तो वहां पर ये मैंने सीखा, जैक ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. क्योंकि वहां पर मुझे गेम्स भी कराना पड़ता था, ये डॉर्मेटरी इसके सुपरविजन करना पड़ता था, बच्चों का देखभाल करना पड़ता था, एवरीथिंग. इट इज रेसिडेंशियल स्कूल, तो फिर करना पड़ता था. तो अभी क्या है, वहां पर मैं रहा इसके 1989 तक. 1986 में मुझे प्रमोशन मिला और सीजीओ 1 बना दिया. तो उसके बाद मैंने इसको प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया. तो 89 में मुझे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ एज ए प्रिंसिपल, एंड फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन करंजा. तो करंजा आपका फर्स्ट पोस्टिंग इन केवीएस, फर्स्ट पोस्टिंग आपका करंजा में था. फर्स्ट पोस्टिंग इन एज ए प्रिंसिपल in Karanja. Okay. That's very nice. So, how was your stay in Karanja, sir? Any memories you carry with you? That is again a long story. I'll tell you. When I came to Bombay, so
first of all, I went to assistant commissioner because I came around 4 o'clock in Bombay. So then I went to regional office to see the assistant commissioner. When I entered the assistant commissioner room, he just stared at me. I also stared at me. At him. मैंने ऐसा लगता है कि वो मुझे पहचानते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ, ऐसा लग रहा था, लेकिन कोई रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो अचानक उन्होंने बोले कि आपसे कहीं कोई मिले हैं लगता है। तब मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ आपसे मिले, आप बड़ौदा मिले थे। वो हमारे किसके इन सर्विस कोर्स, मैं जब जबलपुर में टीचर था तब इन सर्विस कोर्स में बड़ौदा गए थे और वो मैथमेटिक्स के वहां पर डायरेक्टर थे, वहां मिले थे। तो उनको अभी भी याद है और मुझे तो उनको याद करना ही रखना ही था, तो मैं याद हो गया। काफी बातचीत हुई, उसके बाद फिर उन्होंने कहा अच्छा ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दिए। मैंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दिया, लेकिन ज्वाइनिंग रिपोर्ट देने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपके सामने बड़ा टफ टाइम है। मैंने कहा क्या टफ टाइम है? अरे हाँ, क्योंकि केवी करंजा का रिजल्ट इस साल ठीक नहीं रहा है, 80% है, आपको 100% देना है अगले साल। और मैं कैसे पता सकता है कि मैं 100% दे दूंगा अभी, क्योंकि आई डू नॉट नो द स्टूडेंट्स, आई डू नॉट नो द टीचर्स, व्हाट इज द सिचुएशन देयर। तो वेरी डिफिकल्ट टू प्रॉमिस, लेकिन मैंने कहा कि आई ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, तो मैंने और आगे नहीं पूछा मैंने क्या सिचुएशन, मैंने देख के मैं अंदाजा लगाऊंगा। तो उन्होंने एक फोन किया, मिस्टर प्रभाकर शर्मा, प्रिंसिपल केवी नंबर 1 कोलाबा, कहा कि केवी करंजा के प्रिंसिपल मिस्टर मंडल आए हुए हैं, वो कल ज्वाइन करेंगे, आज मैं आपके पास भेज रहा हूँ, आप अपना गेस्ट हाउस में उनको रहने दीजिए। तो मैं चला गया वहां पर, तो गेस्ट हाउस में रात भर रहा और सुबह उन्होंने एक टीचर को मेरे साथ कर दिया और फिर वो लेके गए मुझे जेट्टी में, और जेट्टी से लेके पहली बार मैंने वो बोट की सवारी की। तो बोट की सवारी करके मैं जेट्टी में पहुंचा। वहां पर एक जीप खड़ी थी, शायद वो मिसेस केतकर ने या किसी टीचर ने अरेंज किया था, मुझे पता नहीं है। तो एक जीप खड़ी थी, वो जीप में लेके मुझे वो कहने स्कूल में छोड़ा। मैं वहां ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उसी दिन मिसेस केतकर बोले कि आप आ गए हैं, मैं आप आज ही चली जाऊंगी। तो उन्होंने उसी दिन उनका फेयरवेल था और मेरा वेलकम एक साथ हुआ। और फिर वो चली गई और फिर मैं रह गया वहां पर। दूसरे दिन मैं चेयरमैन के पास गया और चेयरमैन के पास जाके रिपोर्ट देने लगा। तो मैं ज्यों वहां घुसा न्याय कमीशन करके, तो उन्होंने कहा आइए, तो हाथ मिलाया और बैठाया। तो आई सेड मैं अपना नाम बताया कि एंड आई सेड आई एम कमिंग फ्रॉम राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून। तो उनका आंख बड़ी हो गई, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैंने राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून। बोले दैट इज माय कॉलेज, आई वाज स्टूडेंट देयर। तो अब वो एक सेंटेंस में ही इतना इंटीमेसी हो गई, फिर वो फॉर्मेटिव हो गए। अरे आप कब थे आप तो मेरा टीचर हो। मैंने कहा मैंने पढ़ाया नहीं है। देख तो क्या हुआ कि आप मेरे कॉलेज के टीचर ना, वहां पर स्टूडेंट बहुत बॉन्ड है, आरएएमसी के बच्चों में बहुत है। एंड दे ऑन 13th of March they do the reunion all over the India, whatever, even the generals मैं वहां पर था तो कई जनरल से, जनरल ब्यूर बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, जनरल ब्यूर से मिल चुका हूँ, जनरल क्या कहते हैं इसे जो अपना
वीएन शर्मा जो सोमनाथ शर्मा के ब्रदर थे, उनसे मिल चुका हूँ वहां पर, क्योंकि रियूनियन में दे कम, ऑल ओल्ड बॉयज कम देयर। तो ये लोग कहा कि इतना बॉन्ड है, तो बोलते हैं कि मेरा स्कूल है। तो उन्होंने फिर थोड़ी सी बात इधर उधर चाय पिलाया, उसके बाद फिर कहा कि ठीक है आप आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको इस स्कूल का रिजल्ट सुधारना है। यही मेरा सर दर्द हो गया। मैं उधर से असिस्टेंट कमिश्नर बोल रहा है, इधर से ये बोल रहा है, मैं किसको क्या बोलूं, और मैं इसको ठीक से अभी समझा ही नहीं। हाँ, एनीवे मैंने कहा ठीक है मैं इम्प्रूव करूंगा, लेकिन आपका कोऑपरेशन जरूर है। बोले व्हाट एवर आने कैसे हेल्प यू रिक्वायर आई विल गिव यू। मैंने उन्होंने परमिशन दे दिया। उसके बाद फिर मैं ये किया, देखा स्कूल में, देखा ज्यादातर टीचर एडहॉक थे। परमानेंट टीचर में एक मिस्टर पत्थर थे पीजीटी, एक मिसेस जोशी सी पीटी थी, एक मिसेस लिली थी पीजीटी, हाँ, और कोई परमानेंट पीजीटी थी या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, फिजिक्स के पोस्ट खाली थे, केमिस्ट्री के पोस्ट खाली थे, और इसके मैथमेटिक्स के पोस्ट भी खाली थे शायद। हाँ, तो ये इसमें सब एडहॉक टीचर्स थे। उनसे उनसे कितना काम लिया जा सकता है ये हमको पता नहीं था। एनीवे प्राइमरी में बहुत भरमार एडहॉक टीचर थे, हाँ, सेकेंडरी में थे। तो मैंने कहा ठीक है जैसे भी है काम को लेना ही है। तो मैंने कहा कि आप मुझे अब एक दो पॉइंट पे मैंने मेरा इसके टारगेट फिक्स करना है। एक, एसी और चेयरमैन ने कहा कि हमको रिजल्ट इंप्रूव करके दिखाना है पहले ये, तो हमको कंसंट्रेशन करना है 10th और 12th पे। 10th पे, और बाकी जो नीचे का केस मैंने प्राइमरी को मैंने मिस्टर मौर्य को कर दिया कि यू डू द सुपरविजन, यू डू एवरीथिंग, व्हाटएवर यू डू, हाँ, I will go around and see everything, but whatever academics and supervision you got, you have to do everything. I will concentrate on this because I have given the target and I have to fulfill that target. Anyway, so the focus was very clear. Focus was very clear on 10th and 12th first, and then of course later the other classes would follow. मैंने स्पेशली जो पेरेंट टीचर थे, जो परमानेंट टीचर थे, उनको तो जो मैंने रियलाइज नहीं किया, उनको कहा ठीक है आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो और अपने ढंग से अच्छा करो। मिसेस लिली, मिस्टर पत्थर, मिसेस जोशी, और ये रहा आपको जो एडहॉक टीचर्स थे, उनको मैंने अपने कमरे में बुला लिया। और उनको आइडिया नहीं था, तो मैंने उनको कहा वो पहला मैं जो कह रहा हूं आप ऐसा काम करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उनको कहा मैंने, पहले चीज आप सिलेबस को अच्छी तरह कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एक बार रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद आप एग्जामिनेशन सेक्शन में जाओ और जाके कम से कम 5 साल का क्वेश्चन पेपर, जो पुराना क्वेश्चन पेपर है, वो निकाल के लेके आओ। हाँ, और उसके बेसिस पर और आपके खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर बेसिस पे आप 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर बनाओ, सैंपल मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाओ, और उस जो एक्सपेक्ट वो ये कंफर्म करो। मैंने कंफर्म मतलब खुद को एश्योर करो कि इनमें से कम 60% क्वेश्चन उसमें एग्जामिनेशन आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा। तो उन्होंने वैसा ही किया और वो तीनों क्वेश्चन पर सॉल्व करवाया। उन्होंने रिजल्ट इसके जो रिजल्ट आता था वो मुझे हर बार बताते थे, और कहाँ क्या कमी है वो सब हम उनको डायरेक्ट करते थे। इस प्रकार से उस साल, एक ही साल में हमको 100% रिजल्ट मिल गया। हाँ, तो असिस्टेंट कमिश्नर बहुत खुश हुए। और जब उसके बाद एक महीने के बाद किसी काम से ज्वाइंट कमिश्नर पूरन चंद वो बॉम्बे में आए और उनको लेके हमारे स्कूल में आए
और बोले कि देखिए, Okay. he is a newly principal and he doesn't have full-fledged teachers and permanent teachers. With the help of the ad hoc teachers, he got the 100% result in one. Teacher. तो Commendable. उन्होंने Great. हाँ, तो Great, sir. मुझे I think we have in our studio our present principal also, I हाँ think he also wants to join us. Yeah, we are having our present principal also, हाँ Mr. हाँ Sanjeev Kumar ji. yesterday I spoke to him. वो भी है. हाँ I spoke. Okay, yeah. Oh, Yeah. sorry, madam, sir. No, ma'am. Sir didn't join Yes. us still. हाँ It may Okay, take he a, hasn't joined. Okay. yeah. अच्छा It'll take some time. Yeah, it may Okay. take some. Okay. Yeah. Meanwhile, you continue, ma'am. yesterday I Fine, spoke to fine. him. He just, हाँ, yeah, because even he wants to come, and have Yeah. a little conversation. It'll be a good platform to see two principals, side by side of the same Yes, ma'am. Vidyalaya. so Sir, you stayed there, no, in the colony, teachers' colony. So you'll be having good memories. Your family will be having some memories. So we would want your daughter to come and share with us. अभी Is टाइम she ज्यादा there? हो You're रहा staying in. You're staying there. No? है आप टाइम ज्यादा हो रहा बेटी है के पास में हो ना? नहीं बेच भी है वो तो बुलाएंगे लेकिन अभी टाइम ज्यादा हो रहा है क्या Okay. क्योंकि Yeah, we still have 25 minutes. We हाँ have कितने 25 मिनट minutes still. कितने 25 minutes है sir. अच्छा 25 minutes we have, sir. ठीक है I'll just Yeah. sum up. So we I'll would sum want up. to see your daughter. Okay. Yeah. I'll sum No, up. no, we'll share your memories, sir, of the colony. Share your Colony. memories of the colony. अच्छा सुनिए You stayed there ना? आप वहीं पे रहते थे ना? कॉलोनी का मेमोरी आप सुनिए I had हाँ a जी. very very pleasant atmosphere in colony because from the first day when I reached there Mm-hmm. Mm-hmm. I didn't have the accommodation. So I spoke to chairman. Where is my accommodation? So like your accommodation is ready, but it is the builder. So I'll tell him that I should bracket it and give it to you. So one night perhaps I stayed in some staff quarter was vacant there. So I stayed one night there. And I was thinking that in the evening, I have to go to some mess or some restaurant to nearby restaurant to eat something. But by the time Mr. Barai came and told, sir, the food is ready, please come. हमने कहा, food is ready, आप मेरे मिसेस ने बोला है, आपको बुला रहे हैं, आप आ जाइए. हाँ. तो वो बुलाया है तो मैंने कहा ठीक है तो मैं उनकी वहां खाना खाया और उसके बाद डेली जो कने इसके लंच वो पैक करके मिसेस भराई मिस्टर भराई के हाथ में भेज देते थे मैं सोचता था कि मैं कैंटीन से कुछ मंगा के खाऊं उसके पहले ही मिस्टर भराई लाके वो दे देते ये नहीं ये है और उसके बाद वेरी स्वीट जेस्चर सर वहाँ जितने भी टीचर्स थे कोई ना कोई मुझे डिनर में बुला लेते थे कोई ना कोई बुला लेते एक महीना में वहां पर अकेला था मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ मुझे फील नहीं हुआ क्योंकि स्कूल से आते ही जब घर में आ जाते थे तो मिस्टर बराज या मिस्टर ने ये क्या कहते हैं मौर्य या मिस्टर पाल ऐसे बहुत से मिस्टर मौर्य कोई ना कोई आते थे तो बैठे बातें करते थे बातचीत करते थे तो मुझे लगा नहीं कि आई एम एलोन और इवनिंग को इनमें से कभी मिसेस जोशी खाने के लिए बुला लेती कभी यानी ये मिस्टर बराई बुला लेते कभी मिस्टर पाल बुला लेते तो मुझे लगा ही नहीं कि आई एम एलोन अवे फ्रॉम माय होम तो ये आई एम and in the whole month every teacher who are there in the staff quarter at least one they have called me for a dinner so through this media I once again thank all the teachers who look after me very well in that colony
and I had a very nice time there. So, During Ganesh, Really a wonderful gesture, one sir. month, Wonderful after gesture. 1 month, I brought my family from Dehradun. Hmm. After Yeah. that, there was no problem because every evening, almost every evening, we used to go somebody's house to meet, and someday they used to come to our place. Just to come. That way, there was a family relation with everyone. There was family. Perfect. ये मिस्टर That's बराई nice. Perfect family. बेटियां, मिस्टर बराई की बेटियां Mhm. की वाइफ से इतना घुल मिल गई थी, वो हमेशा उसके ही पास में ही रहती थी। तो Okay, ऐसा है। okay. हाँ, तो हमको कोई Yes. वहाँ आने ये लगा, बहुत ही कार्डियल रिलेशन था सबसे, बहुत ही कार्डियल You रिलेशन। had a yeah, Ganesh sir is nice. saying, sir, आपको देखकर करंजा की याद आ गई. Ganesh हाँ, sir is telling, Ganesh sir is telling, sir, आपको Ganesh देखकर sir. करंजा की मधुर स्मृतियां ताजा हो गई. ओह थैंक यू वेरी सर, थैंक Yeah. यू, थैंक यू। And Oh, some saying photograph. it's a very nice session going on. Lily madam is telling it's a courtesy, sir. Lily madam is also giving compliment. थैंक यू Yeah. मैडम। Yeah. So now, Yeah. sir, now, लिली मैडम के पास, लिली मैडम को कई बार हम लोग जो साउथ इंडियन डिश खाने उनके पास पहुंच जाते थे, बुलाए तो yes, वो मैं भी खाती ये थी सर, मैं उनका idli, टिफिन खा लेती थी and क्या वो we जब भी used to जाते थे, exchange. अरे Lily बट madam still अरे remembers तो an वो idli man. हमेशा Yes, अरे वो साउथ इंडियन yes, डिश yes, बना yes. के, अरे इडली डोसा कभी बहुत खिलाया उन्होंने। पक्का हाँ पक्का पक्का। मैं तो अक्सर उनका खाती थी सर टिफिन, जब मैं हाँ, थी ना लिली मैडम का मैं अक्सर टिफिन खाती थी एंड शी यूज्ड टू हैव माय पराठा एंड सब्जी, आई यूज्ड टू और हैव यही नहीं, इडली और एंड यही सांभर। कनेक्शन भी बॉम्बे में गए राइट थे, तो बॉम्बे में वहाँ राइट अक्षर निवास में रहते थे, वहाँ भी उनके घर में खाते रहते थे। तो ये ऐसा थे, रिलेशन तुम्हारा So, ऐसा। यस सर हाँ, यस so ma'am, now let us ये invite सब our बहुत current principal, Mr. Sambaria sir, Sanjeev Sambaria ओके sir. ओके जॉइन So कर please, लिया। sir. ओके Yes, sir. Sir. नमस्कार क्या सर, हो सभी को नमस्कार मेरा। Good evening, sir. नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार, welcome वेलकम to our वेलकम। studio sir and बहुत बहुत good धन्यवाद। evening. The stage is all set for you two principals to interact and we will watch you people. We already discussed yesterday na introduction Welcome. session we Yeah, have taken. welcome हाँ, sir. he is So, Nice, he is a dynamic nice. principal. He is a dynamic Yes, nice principal to and see. doing very well. ऐसा कुछ नहीं है। I am privileged to share, you know, the stage with two dynamic principals of KV Karanja. Thank you. Yes, ऐसा sir. कुछ नहीं है, लेकिन सर जानते हैं कि once you sit on a chair और वो भी प्रिंसिपल की चेयर, आप अपने आप डायनेमिक बन ही जाते हैं। चेयर आपको बना देती है। ये तो है, ये तो है, लेकिन कुछ कुछ अरे सब लोग नहीं बनते, जिसमें थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस है वो बन जाते हैं, जो नहीं है उनको बड़ा लेथर्जिक होते हैं, वो नहीं बन पाते हैं, वो नहीं बन पाते हैं। हाँ, सब नहीं बन पाते हैं। सर मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि जो हमें नहीं मिल सका वो अपने बच्चों को दें, बस फिर बाकी सब अपने आप हो जाता है। बस बस बस, मैं यही हमारा तो यही यानी रहता कि चाइल्ड इज द फर्स्ट, चाइल्ड इज द फर्स्ट इन दिस स्कूल, और उसके बाद टीचर, उसके बाद प्रिंसिपल। हाँ, ये है द ऑर्डर। हाँ, तो चाइल्ड इज द फर्स्ट। बिल्कुल, मैं वैसे उम्मीद कर रहा था, मुझे मतलब पता नहीं था कि आप कांटेक्ट में हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि एक आध बार आप आते स्कूल में और देखते कि स्कूल जब आपने छोड़ा तब कहाँ था और अभी क्या उसमें किया जा सकता है। आपका मार्गदर्शन भी यदि हमें मिलता। मेरी भी इच्छा है जाने की, लेकिन क्या है अभी यानी एक साल से ये यानी लॉकडाउन की वजह से, और उसके बाद उसके पहले माने 3 साल मेरी वाइफ की यानी जो तबीयत खराब थी उससे जूझता रहा, तो इसी नहीं पाया। अब क्या है कि सोचता हूँ थोड़ा सा ये सब हो जाए तो एक आध बार मैं चक्कर लगाऊंगा, माने आऊंगा उधर, ऐसा सोचता हूँ। हाँ, स्वागत है आपका देखते सर, कभी भी आइए। देखते हैं कि भगवान कब तक वो आने। अभी तो सभी कैद हो रखे हैं। ये मिसेस ली बोल रहे हैं, शी लाइक मिसेस मंडल्स आलू पराठा। थैंक यू थैंक यू। हाँ,
वो और एक चीज और अच्छी बनाती थी, चकली और गुजिया। मिसेस हेलो। लिली, हाँ, हेलो लिली मैडम। मिसेस लिली का नमस्कार मैंने आपको जो भी। साउथ इंडियन डिश, वो लाजवाब है। हाँ, मैंने एक होटल में भी खाया और मुझे पसंद नहीं है, जो उनके घर में जो खाया उसका बराबर टेस्ट कहीं नहीं मिला मुझे। हाँ, लाजवाब है। हाँ। अच्छा, फिर सुनाइए आप अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा तो कुछ नहीं सर, मैंने आपको कल बताया ही कि मैं नवोदय विद्यालय में टीचर था, पीजीटी मैथ्स। और वहाँ अपना करने के बाद फिर मैंने यहाँ केवी में एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया 2016 में, और ये पहला ही स्टेशन है मेरा एज ए प्रिंसिपल। और मेरा भी पहला स्टेशन था, मेरा भी पहला स्टेशन एज ए प्रिंसिपल यही था। हाँ। जी जी। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा समाप्त करूं और थोड़ा सा रह गया है तो बता दूं। क्या है कि ये स्टेशन जब मैं ज्वाइन किया तो वही अभी मैं बता रहा था कि सभी ने मुझे बड़ा वेलकम किया, और मैं अकेला 1 मंथ अकेला था, तो सभी टीचर ने मुझे बड़े प्यार से मैंने खाना वाना खिलाया, सब कुछ किया। और मैं उनका इसी माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हाँ, उसके लिए उसका मौका इसके पहले नहीं आया था, तो आज मैं सबको थैंक्स देना चाहता हूँ। और जिस टीचर्स का नाम मैं मेंशन नहीं कर पाया, अभी क्या है कि जरा 25 इयर्स हो गया है करंजा छोड़े हुए, तो इसलिए हो सकता है किसी का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो टीचर नाम यानी समझे कि हमने जो किया है उसका मेंशन नहीं किया। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मुझे अगर नाम लिया तो मुझे माफ कर दे कि मैं नाम नहीं ले पाया, मुझे मेमोरी थोड़ा सा वीक किया है, तो इसलिए मैंने याद नहीं आ रहा इमीडिएटली। हाँ, तो No, बाकी जो I'm sure everybody will understand, sir. Everybody will understand, I'm sure. तो They'll understand. बट It's true. भले ही मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं आई एम ग्रेटफुल टू देम, Yeah. आई एम ग्रेटफुल टू देम। Yes, yes. अच्छा, So one thing common we have, sir. I've also started my career in KVS from KV Karanja कभी करें in जावा। 1980. Yeah, अच्छा, yeah. So it is very special. It is very special for me, KV Karanja बहुत special है मेरे तो लिए. इट इज स्पेशल फॉर मैडम कहाँ पर है अभी आप? Yes, ऑल थ्री। yes, all three of us. एक चीज common है. यस, It's great, sir. And रमनिया we मैडम are अभी getting कहाँ to know. पर है? मैं सर अभी आई एम रिटायर्ड 2 साल हो गए मुझे. आई एम एंजॉयिंग माय रिटायर्ड लाइफ. हाँ, आई मुझे रिटायर्ड लगा फ्रॉम कि केवी सर्विस में बिलास. है। ऐसा है आई रिटायर्ड कि फ्रॉम केवी बिलासपुर. हाँ, वहां से आपका भी रिटायर्ड हुई हूँ मैं. बताया था आपने 18 में छत्तीसगढ़. जनरल हो गई थी। हाँ, छत्तीसगढ़. या आई रिटायर्ड फ्रॉम देयर. एंड मैंने मंडल सर के बारे में सिर्फ सुना था, सर बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है, बहुत स्ट्रिक्ट है. अब आज हूबहू पहली बार इनसे मिल रही हूँ, इनको देख रही हूँ, तो ये तो मेरे लिए तो बहुत ही दूसरे मंडल सर हैं, देखिए देखिए देखिए, मैं अब राज की बात बताऊं, हाँ जी, मैं बताइए. राज की बात बताऊं। हाँ, बताइए, राज बताइए. की बात बताऊं। एक्चुअली हाँ क्या जी. है, I am extremely emotional person, and I या. like to laugh. I have to laugh and enjoy या. with everyone. या. एक यस. कविता मैंने एक कविता मैंने लिखी है, इस बुक में है, हाँ, अभी मैं सुनाइए, बाद में सुनाइए. सुनाऊंगा। हाँ, वो ओके, सुनाऊंगा, ओके, उससे आपको ओके सर. मेरी पर्सनालिटी क्या है और पता लग जाएगा। हाँ, लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि अब क्या है कि उस करंजा में मुझे थोड़ा-सा एक डिफ़िकल्टी जो महसूस हुई, वो मैंने इवैल्यूएट किया और देखा वो हार्ड स्टेशन लायक है। तो मैंने पूरा टीचर्स का प्रॉब्लम नैरेट करके, स्टूडेंट के नैरेट करके, मैंने एक लेटर बनाया और डायरेक्ट लिखा कमिश्नर को और कहा कि काइंडली थ्रू प्रोफेशनल काइंडली डिक्लेयर इट एज़ ए हार्ड स्टेशन। हार्ड स्टेशन. या. तो उन्हें यानी नेक्स्ट सेशन में उन्होंने करंजा को हार्ड स्टेशन डिक्लेयर कर दिया। Okay.
उससे 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 फायदा ये हुआ, टीचर्स देखा ये हार्ड सेशन तुरंत आने लगे। और क्योंकि उनको पता था परमानेंट। कि टेन्योर कंप्लीट होने के बाद हमारे चॉइस प्लस मिल जाएंगे, तो उससे आने लगे। अच्छा, तो हमारी टीचर्स का प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो गई। अच्छा, दूसरी बात जो है, मैंने अपने सीईओ जो कहा भरसिंह साहब थे उस टाइम हमारे चेयरमैन, और वही उनके सामने हम ज्वाइन किया, आरएमसी के स्टूडेंट थे। मुझे कहा कि साहब ये आप 2-4 क्वार्टर आप दे रहे हैं ना, इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। मैं एक सेशन देता हूँ, आप एक छोटा सा प्लॉट और दीजिए मुझे, जहां हम कम से कम 16 to 20 क्वार्टर्स बना सके, ताकि हमारे ये प्रॉब्लम हमरा के सॉल्व हो जाए और टीचर यहाँ आ जाए, परमानेंट रहे, तो आपके बच्चों की एजुकेशन बड़ी अच्छी होगी। तो उन्होंने कहा यहाँ पर लैंड कहाँ है, कहीं नहीं है। मैंने कहा देखिए, लैंड तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करते हैं कि जी को बुलाते हैं आज। तो उन्होंने कहा, जी से बात किया, तो जी को और मुझे एक साथ मीटिंग बुलाया, और उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए नया क्वार्टर बनाने के लिए, आप कहाँ दे सकते हो? तो बोले साहब जिस जगह तो कहीं नहीं, सब ऑलरेडी अलॉटेड है। तो हमने कहा, हमने कहना शुरू किया, देखिए एक प्लॉट मेरे सामने है, मेरे जो प्लॉट है यानी घर है उससे सामने एक प्लॉट है, एक प्लॉट आपका जो स्विमिंग पूल है उसके पास में एक प्लॉट है, ये किसको दिया हुआ है? तो जी कहा कि वो जो स्विमिंग पूल है वो प्लॉट खाली है, लेकिन आपके प्लॉट, आपके बंगलों के पास जो प्लॉट है वो डीएससी को दिया हुआ है, वो डीएससी क्वार्टर बनेगा। हमने कहा डीएससी क्वार्टर आप इधर बनाइए, मेरा क्वार्टर वहां बना दीजिए, तो वो क्या है, सब कॉलोनी एक जगह, सब टीचर एक जगह हो जाएंगे, वो बेटर होगा। चेयरमैन ने सपोर्ट किया, तब ये डिसीजन वहां डिसीजन हुआ कि ये प्लॉट केवी को दिया जाएगा, लेकिन सीएनसी के परमिशन के बाद। हाँ जी, पद्मजा क्या बोल रही है? सर बड़े सर भी बोल रहे हैं कि करंजा स्पेशल था, और न्यू प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट है कि वो करंजा के बारे में 2 शब्द बोले अभी। सर सांभरिया सर प्लीज, आपका म्यूट है सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस सर, मैं प्रिंसिपल से मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर, आ रही है सर। मैं तो क्या यही कह सकता हूँ, देखिए आदमी अपनी जिंदगी में कुछ चीजें जो पहली होती हैं वो कभी भूलता नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि आदमी अपना पहला प्यार नहीं भूलता है, पहली सैलरी नहीं भूलता है, अपना पहला किस नहीं भूलता है। हम गवर्नमेंट लोग भी अपनी पहली पोस्टिंग नहीं भूलते हैं कभी। दिसंबर 2004 में जब मैंने एज ए टीजीटी ज्वाइन किया था नवोदय विद्यालय में, तो जो पहला स्टेशन था वो ऑब्वियसली वो हार्ड स्टेशन ही था। झाबुआ एक बहुत ही ट्राइबल एरिया है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है उधर, एमपी का, मध्य प्रदेश का। तो लेकिन जब आप किसी नई जगह ज्वाइन करते हैं और बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह होते हैं, तो उस स्टेशन का जो आनंद होता है वो आप जिंदगी भर नहीं भूलते। आप सभी लोग सर्विस करते हैं, वो पहला स्टेशन कभी नहीं भूलते। वो कुछ भी परेशानी रही हो, हार्ड हो, आपके पास सुविधाएं ना हो, हम एक बैग लेके पहुंच जाते हैं जिसमें सिर्फ कुछ कपड़े होते हैं और पहुंच जाते हैं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, साथी नहीं, कोई घर बार नहीं। और इसी तरह से मैं वो सब छोड़ छाड़ के करंजा आ गया, बिल्कुल उसी तरह से, जस्ट एक सूटकेस और एक कंधे पे बैग टांग कर 2016 में। जब रिजल्ट आया इस केवी का, प्रिंसिपल का, तो मैं ऐसी जगह पोस्टेड था जहाँ पर नेट नहीं आता था। तो मुझे किसी ने बताया कि आपका सिलेक्शन हुआ है। तो हम लोगों ने कभी एनएडी शब्द नहीं सुना था। तो जिसने मुझे बताया वो बोला कि कोई करंजा एनेड नाद है, तो मुझे लगा नागालैंड होगा। पहली पोस्टिंग तो नॉर्थ ईस्ट ही मिलेगी। यही वैसा जी सर। तो मुझे लगा नागालैंड दिया है। फिर किसी ने बताया ढूंढ के कि नहीं वो मुंबई के पास में है।
फिर अभी इतना वो हो गया है सोशल मीडिया का इसका, तो लोगों ने मुझे खुद ही ढूंढ के बता दिया मुंबई के पास में है, लेकिन हार्ड स्टेशन है। तो नवोदय वाले के लिए कोई स्टेशन हार्ड नहीं है। आप में से भी किसी का कभी नवोदय से कुछ परिचय रहा हो तो होते ही हम लोग जंगलों में हैं। तो लेकिन यहाँ जब मैं आया, यहाँ कोई प्रिंसिपल नहीं थे 1.5 साल से। मिस्टर वानखेड़े वाइस प्रिंसिपल यहाँ इंचार्ज थे। और स्कूल की कमी एक प्रिंसिपल को तो वाकई खलती है। ये आप सब लोग समझ सकते हैं जो स्कूल में काम करते हैं, वो किसी भी रूप में काम करते हो, एक इंचार्ज के काम करने का और एक परमानेंट प्रिंसिपल के होने का फर्क पड़ता है। तो जब स्कूल ज्वाइन किया तब काफी चैलेंजेस थे। बिल्डिंग की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, समुद्र के ठीक सामने है स्कूल बिल्डिंग की भी, और स्टाफ क्वार्टर्स की भी हालत बहुत खराब। जब से बने हैं तब से वो लगभग कोई बहुत ज्यादा उनमें अंतर नहीं था। और डिसिप्लिन की एक समस्या बीच में जो आते ही मैंने महसूस की, वो ज्यादा थी। तो आते ही मैंने इन दोनों पे सोचा कुछ काम करें। वहाँ पे एवरी 2 इयर्स मेंटेनेंस की जरूरत है। हाँ, तो मैंने आते ही ये दोनों काम अपने हाथ में लिए। स्कूल में पढ़ाई ठीक होती रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरे। तो स्टेशन के साथ मिलके, जीई के साथ मिलके लगभग 2 हमने सेपरेट वर्क किए, बड़े बड़े 2.5 करोड़ के लगभग वर्क, 1.25 करोड़ के स्टाफ क्वार्टर्स के लिए और 1.25 करोड़ के स्टील बिल्डिंग के लिए। तो हमने सैंक्शन कराए, फंड मंगाया उसके लिए। जैसे सर बोल रहे हैं कि किस तरह से हार्ड स्टेशन डिक्लेयर करवाया, तो काफी हमने मेहनत की कि फंड आ जाए। टेंडरिंग हो गई और अभी काम शुरू है। अभी आप लोग नए फोटो देखेंगे स्कूल के तो आपको चेंज लगेगा। अभी तो हार्ड स्टेशन नहीं है ना? अभी तो हार्ड है। अभी बीच में लेटर आया था हार्ड स्टेशन से हटाने का, तो हमने फिर से उसके लिए लेटर लिखे और जस्टिफाई किया, तो फिर से हो गया हार्ड स्टेशन। अच्छा। Sir, Sanjeev sir, thank you very much for coming to our session and sparing your time for us. Thank you very much, sir. Yes, sir. एक मिनट जरा थोड़ा सा और मैं बता दूंगा। एक मिनट जरा, ये मैंने बताया था कि एक कविता जो मैं पढ़ूंगा आपको, ये एक साझा संग्रह है जिसमें है, उसमें से मैं एक कविता आपको पढ़ के सुनाता हूँ और 1-2 बात बताना चाहता हूँ बिफोर वी एंड इट। कैसा है देखिए। हमेशा प्रेम पाना चाहता हूँ, हमेशा प्रेम पाना चाहता हूँ, तुम्हें अब मैं बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत झेले दुखों के क्षण निराले, अभी तो मुस्कुराना चाहता हूँ, अभी तो मुस्कुराना चाहता हूँ। नयन से नीर बहना थम गया है, खुशी से गुनगुनाना चाहता हूँ। छुपाए जख्म जो दुनिया हमें दी, निशानी को मिटाना चाहता हूँ। निराली जिंदगी है जान लो, सभी को अब हंसाना चाहता हूँ। ना पीड़ा कष्ट कोई जिंदगी में, खुशी का एक जमाना चाहता हूँ। गगन में चांद सूरज सब चमकते, गगन में चांद सूरज सब चमकते, नखत बन टिमटिमाना चाहता हूँ। नखत माने शरीर, नक्षत्र, नक्षत्र। अच्छा, ये तो ये है। बहुत ही बढ़िया सर। ये मैंने अभी इस प्रकार से, ये एक मेरा वो है, मैंने मुक्तक संग्रह अंधेरे से उजाला की वो, ये तो इसी प्रकार से ये काव्य सौरभ, इसी प्रकार से 10 बुक हमने पब्लिश किए हैं। और ये एक बुक ये है अंबेडकर के ऊपर। दिस इज ट्रांसलेशन, दिस बुक इज रिटन बाय ए प्रोफेसर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड ही आस्क्ड मी टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया है। और उन्होंने एक इस बुक का 150 कॉपी माने इंडिया के ऑलमोस्ट 150 यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी में भेज दिया गया है ये बुक। हाँ, तो मैं ये बुक, मेरे पास जितने बुक्स हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्टूडेंट्स और अपने टीचर्स को दे रहा हूँ। जो टीचर्स इसको पढ़ना चाहते हैं उसको जो आप मांगता है मैं दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इनमें से अगर कोई इसको बुक को लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है,
तो वो एक सेल्फ एड्रेस एनवेलप, एफिक्स 40 रुपीज स्टैम्प मेरे पास भेज दें, तो मैं बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इस बुक मैं आपको भेज सकता हूँ। मेरे पास कुछ कॉपीज रखी गई हैं, तो मैं टीचर्स और स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो अगर जो चाहते हैं, मेरा एड्रेस मैं हेमलता को दे दूंगा, इसी साइट में डाल देंगे। आप देख के आप मेरे एड्रेस पे आप भेज दीजिए। आई विल सेंड दिस बुक टू यू इफ यू वांट इट, if you want to read. This is not a biography. It is not a biography of Dr. Ambedkar. It is the work he has done for the country, for making the constitution, and for other people. So that is the work only. So if you want, you can get it. Sure, sir. Sure. Wonderful, sir. It was really nice having both of you here in our studios today. And on behalf of the core team and KV Karanja family, I thank you, Samvariya sir, and thanks a lot, Mandal sir. आज तो बहुत मजा आया, you know. Personally आपसे बात करके मुझे लगा ही नहीं कि मैं आपको नहीं जानती, you know. मुझे आज ये महसूस हुआ कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, you know. आप कैसे कह रहे हैं कि आप मुझे नहीं जानती? आप तो मेरे फेसबुक पे आती रहती हैं। आपने एक बार फरमाइश की, मुझे याद है, आपने फरमाइश की थी कि आप बच्चों के लिए एक कविता लिखिए, और मैंने लिखा था, भेजा था, आपने देखा ही नहीं, वो देखा ही नहीं। मुझे याद है, मुझे याद है। It was I enjoyed today's evening, and I hope the viewers enjoyed watching you all on one platform. I personally enjoyed hosting the show a lot, and I take this platform to thank both our guests over here today and the core team, and above all the viewers. You know, the core team comprising of Sujit, Sachin, Hemlata, Padmaja, and Pradeep. You people are doing a commendable job. Week after week, there's always something new, and God bless you all. And I wish that KVK flags keep flying higher and higher up. Once again, to our viewers, namaskar. Thank you very much, ma'am, for you also, and for sir for joining us in the session. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, ma'am. I also take this opportunity to thank the core committee, Ms. Padmaja, Hemlata, Sujit, Sachin sir. Sachin, and Pradeep. Yes, sir. Pradeep, you are really doing a very, very, very good job, and I don't have the words to appreciate you. I am very, very happy today because I had been in 6 Kendriya Vidyalayas. And they are very good Vidyalayas, but till now, no one from any Kendriya Vidyalaya did this thing. So this is unique thing you are doing. So I bless you and expect, and may God give you success in this work. And you, as Mrs. Nalini told, आपका जो केवी करंजा का फ्लैग और ऊपर जाए और ऊपर जाए, और आप बच्चे उसके यश और कमाएं. Yes, sir. We're trying our best, sir, to get many more teachers like this. क्योंकि हमने आपको सिर्फ आपका बचपन का जो स्ट्रगल है सर, वो आज हमने सुना है, and it was a very good. These efforts are there, sir. A lot of effort is there behind your today's whatever you are there today. मैं सभी व्यूअर्स को, जो व्यूअर्स हैं, उस व्यूअर्स को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पेशेंस से सुना और मैंने इसको एंजॉय किया. Not I don't know, but tolerated me. But no, sir. It's a pleasure for us to know about you, sir, because till now we know you as a strict principal, sir. That's it. But today we came to know about your struggle and efforts to be in this stage. So really, it's very pleasure for us to interact with you. Thank you. And to know more about you. This is my pleasure that you remember me. This is my pleasure that you remember me. So it's a very pleasure for us. Thank you so much.
Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir.